Good morning, students. So, in the previous videos, we have already done the Bohr's model, uncertainty principle of Heisenberg, and the hypothesis of de Broglie. Now, students, the wave character of an electron and uncertainty in its position and momentum gave a serious blow, gave a serious change to the Bohr's model of an atom. Because according to Bohr, the electrons revolve around the nucleus in certain well-defined circular orbits. But the idea of uncertainty and in position and velocity, they have said that electron is a wave nature. So they have overruled the Bohr's picture of fixed orbits, because if electron has a wave nature, it cannot move in the fixed circular paths. You cannot actually tell the exact position of electron. So thus the classical mechanics could not describe the behavior of electrons in atoms correctly. So the scientists started looking for another model which could incorporate the dual character of matter and uncertainty principle. This resulted a new approach called quantum mechanics, or the wave mechanics, or the quantum mechanical model of atom. Clear? The quantum mechanical model of atom states that electrons are not in circular orbits around the nucleus. Actually, electrons are in 3D region around the nucleus, and that 3D region is called as atomic orbitals. I will explain you what are that atomic orbitals. Means what they have said that we cannot define the exact position of electron. We cannot say that electron is present here in this orbit or in this particular place, because electron has a wave nature. Because if it is have a wave nature, you cannot tell the exact position of the electron. You can only tell the probability of finding an electron, and that probability of finding an electron, that area where the probability of finding an electron is maximum, that is called as atomic orbital. So the atomic orbital describes the probability location of the electron. In this model, instead of orbit, orbital comes into the existence. Now we will understand what orbitals are. We will understand that. See, this is nucleus, and around here, the Bohr has said that here the nucleus is electron is present, and electron is revolving on this circular path. But what the new theory is saying, the new theory is saying that electrons are present somewhere here. Somewhere here. We cannot tell the exact position of the electron. An electron cloud, because electron is having the negative charge, so its effect will, if electron is here, so its effect can be here also, its effect can be here also, because negative charge has a effect which goes far away, which is called as electron cloud. जहाँ जहाँ तक उसका effect जाएगा, area up to where the electron puts its effect as a negative charge, that area is called as electron cloud. ठीक है, इलेक्ट्रॉन का जो नेगेटिव चार्ज है, वो ऐसा तो नहीं है ना कि जहां इलेक्ट्रॉन है सिर्फ वहीं रहेगा नेगेटिव चार्ज, उसके आसपास भी वो जो नेगेटिव चार्ज है दैट विल गेट डिस्पर्स्ड, एंड वो जो पूरा पोर्शन है दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन क्लाउड. समझ में आ रही बात? दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन क्लाउड. उसने क्या बोला था, बोहर ने क्या बोला था कि ये तो न्यूक्लियस है एंड हियर दिस इज द इलेक्ट्रॉन, दिस इज द इलेक्ट्रॉन, दिस इज द इलेक्ट्रॉन. उसे फिक्स कर दिया था इलेक्ट्रॉन के ना पोजीशन को. बट जो डुअल नेचर जो है हमारा, उससे ये बात उसकी गलत प्रूफ हो गई. तो उसी बात को जस्टिफाई करने के लिए हमारा ये जो नया मॉडल है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, इसमें बोला गया कि इलेक्ट्रॉन ऐसा कुछ नहीं है कि ऑर्बिट है कोई और उस पर फिक्स पाथ पर घूम रहा है. इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ there is negative charge, and that negative, there is an effect of negative charge, and that is called as electron cloud. And where the and क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन जो है उसको उसने, जो हमारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्वांटम मैकेनिकल मॉडल दिया, दैट वाज श्रोडिंगर, उन्होंने क्या बोला, उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स को 3D में स्टडी किया. ही सेड दैट इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन 3 डायमेंशनल स्पेस, कि इलेक्ट्रॉन जो है 3 डायमेंशनल स्पेस में कहीं पर घूम रहा है. और क्योंकि 3 डायमेंशनल स्पेस पर घूम रहा है तो आप उसकी एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बता सकते, हाँ आप उसका इफेक्ट बता सकते हो. क्लियर? So orbital is what? Orbital is a 3 dimensional space around the nucleus where probability of finding an electron is maximum. That is, you can say 90 to 95% chances होते हैं कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्रेजेंट हो सकता है.
क्या था ये, डिब्रॉय ने जो वेव पार्टिकल नेचर दिया और हेजनबर्ग ने जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल दिया, इन सब चीजों ने बोहर को फेल कर दिया था। तो फिर ये आए हमारे एरविन श्रोडिंगर, इन्होंने वेव पार्टिकल थ्योरी को जो है प्रपोज किया डिब्रॉय की, और डेवलप की एक इक्वेशन, ठीक है। एक जो इन्होंने अपना क्वांटम मैकेनिकल मॉडल दिया था वो एक इक्वेशन के बेस पे दिया था, दिस बिग इक्वेशन। इसको देख के बच्चों डरना नहीं है, घबराना नहीं है, बिकॉज ना तो हमें इस इक्वेशन को लर्न करना है और ना ही हमें इसका कोई डेरिवेशन करना है। बट ये जो पूरी इक्वेशन है दैट इज श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, इट इज गिवन बाय द श्रोडिंगर। उन्होंने इस इक्वेशन को सॉल्व करा, हालांकि स्टार्टिंग में उनको ज्यादा उनके मॉडल को ज्यादा अप्रूवल नहीं मिला। वाई? बिकॉज इसी वजह से, क्योंकि जो इक्वेशन थी उनकी वो बहुत ही डिफिकल्ट और बहुत बड़ी थी, उसको सॉल्व करना बड़ा मुश्किल था। बट स्लोली स्लोली when the scientists came and they studied the movement of electrons and the 3D movements of electrons, तो धीरे धीरे इस मॉडल को जो है एक्सेप्टेंस मिल गया एंड फाइनली ये मॉडल हमारा सामने आ गया। अब इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करके, इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करके श्रोडिंगर ने हमें कुछ कंक्लूजन्स दिए जो हमारे क्या कहे जा सकते हैं, श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन फॉर हाइड्रोजन आटम। हाइड्रोजन आटम के बेस पर उसने इस इक्वेशन को सॉल्व करा, स्टडी किया, और उसके बेस पर हमें कुछ नंबर्स दिए, कुछ मैजिकल नंबर्स दिए जिन्हें हम क्वांटम नंबर्स कहते हैं, और कुछ बातें बताई और कुछ और चीजें उसने हमें दी, विच इज पहले उसने सॉल्व करके उसको ये छोटा छोटा इक्वेशन बना दिया। यहाँ पर हमारा एच इज कॉल्ड एज हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। ये एक मैथमेटिकल ऑपरेटर है विच इज कॉल्ड एज हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। तो एच साई, दिस इज कॉल्ड एज साई, एच साई इज इक्वल टू ई साई, वेयर एच इज हैमिल्टोनियन ऑपरेटर एंड साई ई इज एनर्जी, एंड व्हाट इज साई, दिस इज कॉल्ड एज वेव फंक्शन। इसे हम वेव फंक्शन बोलते हैं। अब क्या बोला गया कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो वेव्स की फॉर्म में घूमता है, उसकी वेव नेचर है। तो जब वेव नेचर है उसकी, तो इट मीन्स कि वेव्स का तो एम्पलीट्यूड होता है, तो उसका भी कुछ एम्पलीट्यूड होगा। तो ये जो वेव फंक्शन है ये ऑल थ्री कोऑर्डिनेट्स में स्टडी कर कर इलेक्ट्रॉन का एम्पलीट्यूड बताता है। दिस टेल्स अस द एम्पलीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो श्रोडिंगर ने जब अपनी इक्वेशंस को सॉल्व किया तो उसने हमें कुछ एनर्जी लेवल्स बताए जिन वैल्यूज को हम ईगन वैल्यूज बोलते हैं, ठीक है। और उसमें हमारे को वेव फंक्शन बताया उसने, जिसमें से एक वेव फंक्शन था हमारा क्या, साई, विच गिव्स अस द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। और एक और वेव उसने हमें अपना इक्वेशन दिया, एक और उसने हमें ऑपरेटर दिया, या ये कह सकते हैं कि एक और उसने हमें वेव फंक्शन दिया विच इज कॉल्ड एज साई स्क्वायर। एक तो साई है, साई गिव्स अस द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। अनदर थिंग इज साई स्क्वायर। साई स्क्वायर हमें क्या बताता है, साई स्क्वायर टेल्स अस द डेंसिटी और द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन। जहां पर साई स्क्वायर की वैल्यू जितनी ज्यादा है, इट मींस द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम ओवर देयर, and where the probability of finding an electron is maximum, that particular area is called as orbital। ठीक, that particular area is called as orbital। तो ऑर्बिटल क्या है कि इलेक्ट्रॉन के चारों तरफ, ये न्यूक्लियस के चारों तरफ, where there is dense area, where there is dense area of yeah, we can say where there is dense probability of finding the electron, that is called as orbital। तो उसको अब क्या किया, ये तो था हमारा ये न्यूक्लियस, इसके चारों तरफ अगर आप देख रहे हो ये डॉट डॉट, ये जो है ये प्रोबेबिलिटी शो कर रहा है इलेक्ट्रॉन के होने के चांसेस। तो हेयर द प्रोबेबिलिटी, द ये जो डॉट डॉट्स हैं ये बहुत ज्यादा डेंस है, बहुत पास पास है, इट मींस हेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। लेकिन यहाँ पे भी है, तो ऐसा तो नहीं है कि यहाँ बिल्कुल नहीं है। तो हमने क्या किया, जहां जहां तक इलेक्ट्रॉन के मिलने के चांसेस थे, जहां जहां तक प्रोबेबिलिटी थी, वहां पर एक बाउंड्री बना दी कि इसके बाहर नहीं है, यहाँ तक मिलने के चांसेस है। ये बाउंड्री हमने इस तरीके से ड्रॉ कर दी, एंड नाउ दिस इज कॉल्ड एज ऑर्बिटल। तो ये जो बाउंड्री है, इसके अंदर अंदर इलेक्ट्रॉन के मिलने के चांसेस जो है वो सबसे ज्यादा है, एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज ऑर्बिटल। समझ गए आप ऑर्बिटल किसे बोला? तो ऑर्बिटल क्या है, ऑर्बिटल एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, एंड दिस इज दैट रीजन अराउंड द न्यूक्लियस where the probability of finding an electron is maximum, you can say 90% probability, 90% चांसेस है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के मिलने के। और जहाँ चांसेस थे उसके चारों तरफ हमने बाउंड्री बना दी, तो उसके अंदर का जो एरिया है दैट इज कॉल्ड एज ऑर्बिटल।
तो अब हमारा एक नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ, एक नई टर्म इंट्रोड्यूस हुई, दैट इज ऑर्बिटल, जो कि बोहर अब तक क्या कहता आ रहा था, ऑर्बिट 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 कर रहा था वो, बट नाउ द साइंटिस्ट हैव सेड देयर इज नो ऑर्बिट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का कोई फिक्स पोजीशन नहीं है, कोई फिक्स पाथ पे वो घूम नहीं सकता, बिकॉज उसकी वेव नेचर भी है। ठीक है, तो दोनों नेचर्स, पार्टिकल और वेव, यानी डुअल नेचर को कंसिडर किया गया एंड ऑर्बिटल का कंसेप्ट दिया गया। उसके अकॉर्डिंग क्या उन्होंने बोला, अब डिफरेंसेस का स्टूडेंट्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ द टाइम्स it can be asked in your exams. So the first difference is that orbit is a well defined circular path around the nucleus in which an electron revolve। अगर हम एक सर्कल बना दें पूरा, जैसे कि न्यूटन ने बनाया था कि पूरा सर्कल है और इसके चारों तरफ जो है इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, वो उसे हमने ऑर्बिट का नाम दिया था। बट ऑर्बिटल क्या कहते हैं, ऑर्बिटल कहते हैं इट रिप्रेजेंट द रीजन in space around the nucleus in which the probability of finding an electron is maximum। पोजीशन एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन हाँ यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। ऑर्बिट जो है वो प्लेनर मोशन शो करता है, एक सर्कुलर पाथ बना दिया, वहां पर सीधा सीधा इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है। बट ये जो है ऑर्बिटल, यहाँ पर क्या, इट रिप्रेजेंट्स द थ्री डायमेंशनल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही स्टडी किया गया था इसको, थ्री डायमेंशनल स्टडी के अकॉर्डिंग ही इसका वेव फंक्शन दिया गया था, उसी के बेस पर प्रोबेबिलिटी निकाली गई, तो ये थ्री डायमेंशनल मोशन को शो करता है। Orbit gives a definite path of an electron and this concept is not in accordance with the uncertainty principle को, तो वो फॉलो कर ही नहीं रहा था क्योंकि डेफिनेट पाथ दे दिया गया था। और अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में क्या बोला गया था कि साइमल्टेनियसली वी कैन नॉट टेल द एग्जैक्ट पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ एनी मूविंग ऑब्जेक्ट, जबकि उसमें तो दे दिया गया था, है ना, बोहर में दे दिया था ऑर्बिट के अकॉर्डिंग। तो ऑर्बिटल जो है वो नहीं, ऑर्बिटल डज नॉट स्पेसिफाई द पाथ एंड अकॉर्डिंग to the concept electron may be anywhere in this region। तो दिस कंसेप्ट इन अकॉर्डिंग टू द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हो गया ना, क्योंकि कहीं पर ही है वो, तो वही तो हम कह रहे थे कि एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बता सकते, पोजीशन बता तो सकते हैं, आसपास नियर अबाउट वी कैन टेल, बट वी कैन नॉट टेल द एग्जैक्ट पोजीशन। तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को, जिसको कि बोहर नहीं कर पाया था जस्टिफाई, वो ऑर्बिटल के कंसेप्ट ने जस्टिफाई कर दिया। The orbitals are circular, they are always circular, the orbits sorry, but orbitals have the different shapes। अभी हम आगे इसी चैप्टर में shapes पढ़ेंगे। We have different orbitals like s orbital, p orbital, d orbital, and all are having different shapes। Like s orbital is spherical in shape, p orbital is dumbbell in shape, and yeah, so d is double dumbbell in shape। so इस तरीके से हम सारी shapes आगे पढ़ने वाले हैं, but they are having the different shapes। Orbits do not have a directional कैरेक्टरिस्टिक्स, बिकॉज सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है तो कोई डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक तो इसका होगा नहीं। लेकिन अगर हम ऑर्बिटल्स की बात करें तो एस ऑर्बिटल जो उसका की शेप स्फेरिकल है, तो वो भी ऑर्बिट की तरह सर्कुलर पाथ पे घूमता है, सर्कुलर पाथ है उसका, वहां पर कोई डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स हमें नहीं मिलते। बट पी डी बाकी के जो ऑर्बिटल्स हैं दे एग्जिबिट द डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स। ऑर्बिट में एक ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर सकते हैं, द फॉर्मूला इज 2n²। जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स के हिसाब से फॉर्मूला दिया था बोहर ने, दैट इज 2n²। मतलब अगर n की वैल्यू 1 है, यानी फर्स्ट वाला जो ऑर्बिट है वहां पर कितने इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, 2। जो सेकंड वाला है, n की वैल्यू अगर 2 हो जाती है तो कितना हो जाएगा, 2 2 4 2 8, 8 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। तो ऑर्बिट में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग द फॉर्मूला 2n² कि एक ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर सकते हैं। बट ऑर्बिटल्स की अगर हम बात करें तो इन वन ऑर्बिटल ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स कैन अकोमोडेट। कोई फॉर्मूला इसके लिए नहीं है, ये फिक्स है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स ही अकोमोडेट कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस, यू पीपल हैव टू लर्न दिस एंड यू पीपल हैव टू अंडरस्टैंड दिस आल्सो। So by calculating or by solving his big equation जो मैंने अभी आपको दिखाई, जो श्रोडिंगर ने दी थी, that was what, बहुत बड़ी सी इक्वेशन थी ना, जिसमें हमारे पास क्या था, d² psi अपॉन dx²। मैंने वहां रीड नहीं की थी, मैं एक बार रीड कर देती हूँ ताकि आपको पता रहे रीड कैसे करते हैं। d² psi अपॉन dx² प्लस d² psi अपॉन dy² प्लस d² psi अपॉन dz² प्लस 8 pi² m अपॉन h², ब्रैकेट स्टार्ट, e माइनस v ब्रैकेट क्लोज, psi इक्वल 0, वेयर psi इज वेव फंक्शन। ठीक है, एंड एक्स वाई जेड ये 3 कोऑर्डिनेट्स हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट को स्टडी किया गया था। h इज obviously that is what, the Planck's constant, v is potential energy, e is the total energy of the electron, clear,
and psi is the wave function which is actually the amplitude of the wave. ठीक है, तो ये पूरा इक्वेशन था जिससे मैंने आपको बताया था, हमें समझना नहीं है, हाँ लेकिन ये बताना जरूरी है कि श्रोडिंगर ने ये इक्वेशन दिया था और उसे सॉल्व करके फिर उसने एक छोटा इक्वेशन दिया, दैट इज h psi is equivalent to e psi where h is a mathematical operator called Hamiltonian operator। और उसे सॉल्व करने के बाद फिर उसने हमें बहुत सारी बातें बताई, जिसमें से एक बात ऑर्बिटल के बारे में थी जो मैंने अभी अभी आपको समझाई है। उसके अलावा हमें एक्चुअली हमारे पास 4 होते हैं, बट 3 मैजिकल नंबर्स उसने दिए थे, 3D स्ट्रक्चर को उसने स्टडी किया था, ठीक है। तो ऑर्बिटल्स रिप्रेजेंट रीजन इन स्पेस वेयर द probability of finding an electron is maximum. So now to describe each electron in an atom in different orbitals, we need a set of 3 numbers known as quantum numbers। कि इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली कहाँ पर है, अभी तक तो हम प्रोबेबिलिटी बता रहे हैं ना, तो इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट एड्रेस जानने के लिए, उसकी एग्जैक्ट पोजीशन जानने के लिए हमें इन 3 नंबर्स की जरूरत पड़ी। इन 3 नंबर्स को बोला गया क्वांटम नंबर्स, ठीक है। तो अब हम एक एक करके इन 3 नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे, मैं आपको समझाऊंगी क्या थे ये 3 नंबर्स और कैसे इन्होंने हेल्प कर की हमें इलेक्ट्रॉन की पोजीशन बताने में। स्टूडेंट्स ये एक तरीके से ऐसे हैं जैसे कि एड्रेस किसी का बताना हो, तो एड्रेस बताने के लिए आप बोलोगे कि वो ना दिल्ली में रहता है। अब दिल्ली में कहाँ भाई, अच्छा वो दिल्ली में ना वो कौन सी लवली कॉलोनी में रहता है। ओके लवली कॉलोनी, अब लवली कॉलोनी में तो बहुत सारे फ्लैट्स हैं भाई, कौन से फ्लैट में रहता है, तो वो ना फ्लैट नंबर 22 में रहता है, तब आपको एड्रेस एग्जैक्ट पता चलेगा, है ना। तो ये 3 चीजें हो गई, एड्रेस आपने देखा उसका कि दिल्ली में रहता है, सिटी, देन कॉलोनी, देन हाउस नंबर, है ना। उसके बाद अब हाउस नंबर में भी एक चीज हो सकती है कि मान लीजिए हाउस नंबर में उस पर्टिकुलर घर में 2 लोग रहते हैं और आपको किसी एक से काम है, तो भाई कौन से किससे काम है, 2 है वहां पर तो लोग, अच्छा तो उसमें से जो मेल है ना उससे मुझे काम है, तो एग्जैक्ट पता चल गया आपको कि किससे आपको बात करनी है और वो कहाँ आपको मिलेगा। तो ऐसे अगर हम पर्टिकुलर किसी एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, हम एग्जैक्ट उसकी पोजीशन तक पहुंचना चाहते हैं, तो कैसे पहुंचेंगे, तो ये क्वांटम नंबर्स जो है ये हमारी वहां पर हेल्प करने वाले हैं। So the quantum mechanical model describes the probable location of the electrons in atom by describing 4 numbers. The first is principal energy level or principal quantum number. We represent it by small n. Second is angular momentum, which is called as azimuthal quantum number. Third is magnetic quantum number, and fourth is spin quantum numbers। तो इन चारों नंबर्स के बारे में एक एक करके मैं आपको समझाती हूँ। द फर्स्ट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एज आई टोल्ड यू, इसे हम स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमने जो बोहर ने जो शेल दिया था ना उसी की बात हो रही है। बोहर ने ही बताया था इस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में भी, बोहर ने ही दिया था हमें। इट इज एक्चुअली द एड्रेस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, लेकिन ये क्या है, इट इज द ऑर्बिट और द प्रिंसिपल शेल। ये हमें इलेक्ट्रॉन के प्रिंसिपल शेल के बारे में बताता है कि इलेक्ट्रॉन जहां प्रेजेंट है वो कौन से शेल में प्रेजेंट है, उसका प्रिंसिपल शेल कौन सा, हमने पढ़ा था n=1, n=2, n=1 is also called as k shell, n=2 is also called as l shell, n=3 is also called as m shell, and so on। about it you people must have studied in class 9th or 10th, I don't know, मुझे अच्छे से याद नहीं है, 9th या 10th में किसी में है ये एक, तो आपने पढ़ा हुआ है ये सारा। तो n, ये उसी n की बात हो रही है, दिस प्रिंसिपल नंबर इज n, वेयर n कैन बी 1 2 3 4। अगर 1 है तो हम फर्स्ट शेल की बात कर रहे हैं, सेकंड है तो सेकंड शेल की बात कर रहे हैं। अब ये हमें बहुत सारी चीजों के बारे में बताता है, क्या क्या बताता है ये हमें, अगर इनकी सबसे पहली बात तो इट गिव्स अस द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, ठीक है, कि कितने हमारा प्रिंसिपल शेल जो है वो कौन सा है यहाँ पर, नंबर 1। फिर ये हमें बताता है इट गिव्स अस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द मेन शेल, कि कितने इलेक्ट्रॉन्स होने वाले हैं इस शेल में। कैसे बताएगा भाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होने वाले हैं, to calculate the number of electrons you can use the formula 2n square, 2n square। अगर n की वैल्यू 1 है तो कितना आ जाएगा 2n square, 2, यानी फर्स्ट शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, 2। n की वैल्यू अगर 2 है तो कितना हो जाएगा 2n स्क्वायर का वैल्यू, 2 2 4, 4 2 8, यानी कितने इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं 8। n की वैल्यू अगर 3 है तो 3 3 9, 9 2 18, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं 18। तो इससे हमें एक तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता चलते हैं कि इन ईच शेल how many electrons can accommodate। Then it gives us the angular momentum। angular momentum के लिए हमने क्या फॉर्मूला लिया था इलेक्ट्रॉन्स के, mvr is equivalent to nh/2 pi, nh/2 pi। तो n की जरूरत पड़ रही है यहाँ पर, अगर n नहीं पता होगा हमें तो हमें एंगुलर मोमेंटम पता नहीं चलेगा। it gives us the energy,
एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन। एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, -2.18 into 10 to the power -18 into z square upon n square. Again n is required here. It tells us about the radius associated. Radius का फॉर्मूला क्या है, r is equivalent to 52.9 into n square upon z. Here again n is required. So what we can say that principal quantum number gives the average distance of the electron from the nucleus, size of the electron cloud or shell we can say, and energy associated with it. इससे हमें पता चलता है, ठीक है। उसके अलावा स्पेक्ट्रम की लाइंस हमने डिसाइड करने के लिए भी प्रिंसिपल नंबर का यूज किया था, खैर उसकी बात हम यहाँ नहीं करते। तो ये क्या है, प्रिंसिपल। ये सबसे पहले हमें ये पता चल गया, अब हम दिल्ली में हैं, ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो दिल्ली में है, ठीक है। 1 2 3 4, 1 है तो दिल्ली में है, 2 है तो मुंबई में है, 3 है तो कैलकाटा में है, 4 है तो, दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, ये मत सच में मत समझ लेना। n इक्वल 1 मतलब फर्स्ट शेल में है, n इक्वल 2 मतलब सेकंड शेल में है, n इक्वल 3 मतलब थर्ड शेल में है, और n इक्वल 4 मतलब फोर्थ शेल में वो है। सेकंड आता है हमारे पास एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, विच इज आल्सो कॉल्ड एज एजीमुथल क्वांटम नंबर। इसका दूसरा नाम क्या है, एजीमुथल क्वांटम नंबर। इसे हम स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं। समरफील्ड नेम के साइंटिस्ट ने हमें इनके बारे में बताया था, क्लियर। अब क्या है, L इज इक्वल टू, L को अगर हमें कैलकुलेट करना है तो क्या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमारी हेल्प कर सकता है, यस डेफिनेटली कर सकता है। L इज इक्वल टू 0 to n-1। L की वैल्यू कितनी होगी, 0 से लेके n-1 तक, मतलब अगर n की वैल्यू 1 है, ठीक है, तो मतलब फर्स्ट शेल के लिए 1 - 1 0, तो L की वैल्यू कितनी होगी, सिर्फ 0। अगर हम सेकंड शेल की बात कर रहे हैं, सेकंड शेल, ये L है क्या, L हमें बताता है कितने सब शेल्स हैं, एक शेल के अंदर अब कितने सब शेल प्रेजेंट है। तो जो फर्स्ट शेल है हमारा n इक्वल 1, उसमें एक भी सब शेल प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि वैल्यू कितनी आ रही है, 0, क्लियर। सेकंड वाला जो हमारा शेल है, यानी n की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो 2 - 1 इक्वल 1, ठीक। तो 0 to 1 कितना हो गया, 0 और 1, यानी 2 सब शेल्स आर प्रेजेंट, क्लियर। इसी तरीके से जैसे जैसे वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, हमें नंबर ऑफ शेल्स पता चलते जाएंगे। अच्छा, अब ये जो सब शेल्स हैं, इन्हें भी हम किसी ना किसी लेटर से डिनोट करते हैं। तो अगर हमारा जो सब शेल है दैट इज 0, तो दैट इज एस सब शेल। P अगर 1 है तो P, 2 है तो D, 3 है तो F, 4 है तो G। तो अगर हम फर्स्ट वाले अब शेल की बात करें, फर्स्ट शेल जिसकी वैल्यू है n, n के लिए हमने L की वैल्यू निकाली तो आई 0, यानी फर्स्ट शेल में सिर्फ एक ही सब शेल प्रेजेंट है, ठीक है, जिसे हम कह सकते हैं, मतलब 0 सब शेल्स प्रेजेंट है, या ये कह लो, या कह लो एक ही सब शेल प्रेजेंट है, जो है हमारा S, यानी n इज इक्वल अगर 1 है तो देयर इज ओनली S सबशेल इज प्रेजेंट ओवर देयर ओनली। अगर हमारा n की वैल्यू 2 हो जाती है, तो हमारे पास कितने नंबर्स आ गए, L के 0 और 1, यानी n की वैल्यू 2, यानी सेकंड शेल में कितने सबशेल्स प्रेजेंट है, 2, कौन कौन से, S और P, क्योंकि वैल्यू क्या है हमारे पास, 0 और 1। अब n की वैल्यू हम रख देते हैं 3, यानी थर्ड वाला सबशेल थर्ड वाला शेल ले लेते हैं अपना प्रिंसिपल शेल। तो 3 - 1 2, तो 0 से लेके 2 तक, यानी L की वैल्यूज क्या क्या हो गई हमारे पास, 0 1 2। 0 मतलब S सबशेल, 1 मतलब P सबशेल, एंड 2 मतलब D सबशेल। तो इट मींस अगर इफ n की वैल्यू 3 है, इफ n इज इक्वल टू 3, देन इट हैज 3 सबशेल्स, कौन कौन से, S P एंड D। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं कि कितने सब शेल्स किसी के पास प्रेजेंट हैं। आ रही बात समझ में, क्या। उसके अलावा इससे भी हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, 2l + 1, ठीक है। L की वैल्यू रख देंगे, +1 कर देंगे, 2 L की वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करके उसमें 1 प्लस कर देंगे और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नोट्स में मैं आपको ये सारे फॉर्मूलाज दे दूंगी, आप वहां से ले लीजिएगा। So you can see that here I'm only explaining you, so I'm not telling you. अब एग्जांपल देते हैं, लाइक मैंने आपको बोला कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए वी कैन यूज द फॉर्मूला 2l + 1। तो L की वैल्यू अगर 0 है तो 2 into L, यानी 0 0 + 1 इक्वल 1 ओनली, एंड 1 2s are 2। तो इट मींस कि अगर L की वैल्यू 0 है तो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, 2। और L की वैल्यू 0 कब होती है, जब n इज इक्वल टू 1, यानी जो फर्स्ट शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, सिर्फ 2, क्लियर। तो इस तरीके से आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी निकाल सकते हो। उसके अलावा एंगुलर मोमेंटम आप अजीमुथल क्वांटम नंबर से भी निकाल सकते हो, इसीलिए इसको एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर भी बोलते हैं।
The formula for this is h upon 2 pi under root L bracket start L plus 1 bracket close. So this is the formula. Again, I will give you this formula in the notes. You can see there and use that formula. तो अभी हम कहाँ पहुंच गए? अभी हमें दिल्ली बता दिया था, जिसने बता दिया था कि हम दिल्ली में है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में, यानी शेल मिल गया था हमें कि कौन से शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब कौन से सब शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? अगर इलेक्ट्रॉन में L की वैल्यू 0 आ रही है तो वो S सब शेल में प्रेजेंट है। अगर L की वैल्यू 1 आ रही है तो वो P सब शेल में प्रेजेंट है। अगर L की वैल्यू D आ रही है तो वो सेकेंड वाले सबशेल में प्रेजेंट है। तो अब हमें एक उसकी कॉलोनी पता चल गई है ना, अब उसका हाउस नंबर भी तो जानना जरूरी है। तो थर्ड नंबर की तरफ मूव करते हैं, दैट इज क्वांटम, द मैकेनिकल क्वांटम नंबर, जिसे हम m से रिप्रेजेंट करते हैं। नीचे छोटा सा l लगा हुआ है यहाँ पर, ml। ये हमें बताएगा, क्या बताएगा? It will tell now that how many orbitals are present in each subshell. हर सबशेल में, तो सबशेल देखो, शेल डिवाइडेड होता है सबशेल में, सबशेल डिवाइडेड होता है ऑर्बिटल्स में, ठीक है। ऑर्बिटल्स के अंदर फिर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। जैसे मैंने आपको बताया अभी ऑर्बिटल में कि इन वन ऑर्बिटल ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स कैन अकोमोडेट, है ना। और एक शेल में कितने सबशेल होते हैं उसके लिए आई हैव गिवन यू द फॉर्मूला। व्हाट इज द फॉर्मूला? L is equivalent to 0 to n minus 1। क्लियर? अब हम देखते हैं m। m के लिए भी क्या कोई फॉर्मूला है? कोई पूछे तो आप बोलेंगे यस, m के लिए भी फॉर्मूला है। कि m की वैल्यू हम कैसे निकालें? कैसे निकालोगे? पहले तो ये बताओ ये है क्या? इट डिस्क्राइब्स एज द ओरिएंटेशन और द बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द मैग्नेटिक फील्ड। कि मैग्नेटिक फील्ड में जब हम इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो उसकी ओरिएंटेशन क्या हो जाती है। इसकी वैल्यू क्या है? इसकी वैल्यू होगी -L 0 प्लस L, -L से लेकर +L तक, मतलब -L 0 प्लस L। अब इसको समझो स्टूडेंट्स, एग्जांपल देती हूँ मैं आपको। अगर L की वैल्यू 0 है, इफ L इज 0 देन M is equal to 0, so it means only S subshell is present। M is equivalent to 0, sorry, L is equivalent to 0 and M is equal also 0। L is equivalent to 0 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? S subshell। और m इज इक्वल टू 0 यानी m की एक ही वैल्यू आई, तो ये क्या प्रेजेंट कर रहा है कि s सबशेल में सिर्फ एक ही ऑर्बिटल होता है। बात समझ में आ रही है? दो वैल्यूज थी यहाँ पे, l इक्वल 0, उसने ये रिप्रेजेंट किया कि हम s की बात कर रहे हैं, और m इक्वल 0, उसने ये बोला कि एक नंबर आया, सिर्फ एक ही वैल्यू आई है, तो एक ही ऑर्बिटल होगा, किसमें? s में। अब l की वैल्यू हम लेते हैं 1, L की वैल्यू 1 है, तो क्या क्या हो जाएंगी हमारे पास? 3 वैल्यूज हमारे पास आ जाएंगी, -1 0 +1। तो M की कितनी वैल्यूज हो गई? 3 वैल्यूज, 3 वैल्यूज वी हैव गॉट। एंड L इक्वल 1 कब होता है? L इक्वल 1 का क्या मतलब है? वी आर टॉकिंग अबाउट P सबशेल, P, और P में M की वैल्यूज कितनी आई? 3, तो इट मींस P सबशेल हैव 3 ऑर्बिटल्स। क्लियर? गेटिंग माय पॉइंट नो? अच्छा, फिर आते हैं L इक्वल 2, तो कितनी वैल्यूज आ जाएंगी हमारे पास? -2 -1 0 +1 +2, 5 वैल्यूज, 5 वैल्यूज आ गई हमारे पास स्टूडेंट्स m की। और L इक्वल 2 जब होता है तब हम कौन से ऑर्बिटल की बात, कौन से सबशेल की बात कर रहे होते हैं? We are talking about, yes, D subshell। In previous slide you can see we are talking about D subshell। तो इसका मतलब D subshell के अंदर कितने ऑर्बिटल्स हैं? 5। So in this way we can calculate the number of orbitals present in each subshell। क्लियर? अब आपको क्या पता चल गया? अगर अगर आपके पास n की वैल्यू है, सपोज n की वैल्यू है 2, ठीक, तो इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट सेकेंड शेल। सेकेंड शेल अगर n इक्वल 2 है तो L की वैल्यू कितनी हो जाती है? 2 - 1 दैट इज 1, यानी L की दो वैल्यूज हैं, 0 और 1। इट मीन्स इसके पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो दो जगह हो सकते हैं, या तो S में हो सकता है या फिर P में हो सकता है, दो जगह हो सकता है। फिर हमारे पास आ गई M की वैल्यू, M, ठीक है। M कैसे निकालेंगे? L इज इक्वल टू कितना कैलकुलेट किया है हमने? 1, तो क्या वैल्यू हो सकती है हमारे पास? -1 0 +1। इट मीन्स हमारे पास 3 ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है। कितने ऑर्बिटल प्रेजेंट है? 3 ऑर्बिटल्स, ठीक है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वांटम नंबर की, दैट इज स्पिन क्वांटम नंबर। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ms। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हमने ml से रिप्रेजेंट किया था, और ये हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ms से। ये हमें सिर्फ ये बताता है कि स्पिन क्या है, इलेक्ट्रॉन की ओरिएंटेशन क्या है, ठीक है। इसे हमें अलेनबेक एंड गाउट स्मिथ नाम के दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसके बारे में बताया था। इट टेल्स अस द स्पिन अराउंड द
स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड इट्स एक्सिस। देखो मैंने आपको बताया था कि जब वेव नेचर हमने की थी कि इलेक्ट्रॉन जब घूमता है न्यूक्लियस के चारों तरफ तो वो ऐसे ही नहीं घूमता, वो क्या करता है घूमते घूमते अपनी अपनी एक्सिस के चारों तरफ एक रोटेशन कंप्लीट करता है, फिर आगे घूमता है, फिर आगे घूमता है, जैसे अर्थ सन के चारों तरफ घूमती है ना। तो इलेक्ट्रॉन अपनी एक्सिस के चारों तरफ घूम रहा है तो या तो क्लॉकवाइज घूमेगा या एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, दो ही स्पिन हो सकती है। तो ये वाला जो नंबर है हमें बताता है कि जिस इलेक्ट्रॉन की हम बात कर रहे हैं उसकी स्पिन क्या है, प्लस हाफ और माइनस हाफ। प्लस हाफ यानी क्लॉकवाइज एंड माइनस हाफ यानी एंटी क्लॉकवाइज। तो इन वन ऑर्बिटल देयर कैन बी टू इलेक्ट्रॉन्स ओनली, तो एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूमेगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। तो अगर हमारी पास प्लस हाफ वैल्यू आती है इट मींस इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग, इलेक्ट्रॉन इज रोटेटिंग अराउंड इट्स एक्सिस क्लॉकवाइज, और अगर माइनस हाफ आती है तो इट मींस एंटी क्लॉकवाइज। तो अब हमें ये सारी चीजें पता चल गई। अब हमारे पास ये देखो एक मैंने आपको ये चार्ट सा बना दिया। इफ n इज इक्वल टू 1 तो l की वैल्यू कितनी होगी, n माइनस 1 दैट इज 0। तो इट मींस इसके पास कौन सा सबशेल प्रेजेंट होगा, सिर्फ s। 1 में सिर्फ s पॉसिबल है और m की वैल्यू भी कितनी है 0। तो इसका मतलब s सबशेल में ऑर्बिटल्स भी कितने हैं 1। तो अगर ऑर्बिटल भी 1 ही है तो इट मींस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो सकते हैं इसके पास, ओनली 2। इफ द वैल्यू ऑफ n इज 2 यानी हम सेकंड सबशेल की बात कर रहे हैं तो l की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर दो वैल्यूज आएंगी अब हमारे पास, 0 एंड 1 है ना। 0 अगर है तो इट मींस m की वैल्यू हो गई 0, और 1 जो है उसमें m की वैल्यू कितनी होगी, -1, 0 एंड +1। 0 है तो इट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट 2s। 2s हमारा एड्रेस हो गया इलेक्ट्रॉन का, और उसके अंदर ऑर्बिटल्स कितने हैं, क्योंकि s ऑर्बिटल है, s में सिर्फ s सबशेल में सिर्फ एक ही ऑर्बिटल होता है तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, और 2 इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल है और उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स है। और अगर हम बात करें सेकंड वाले की तो हियर वी कैन सी वी आर हैविंग 3 वैल्यूज ऑफ m, तो इट मींस 3 ऑर्बिटल्स हैं इसके पास। एंड बिकॉज 1 हमारा अगर l होता है तो हम बात करते हैं p की, और इसमें n की वैल्यू 2 है तो इट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट 2p। देखो यहाँ पर ये जो नंबर है ये हमारा शेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। एल की वैल्यू यहाँ भी 0 है, एल की वैल्यू यहाँ भी 0 है, इसलिए दोनों में एस आया। लेकिन यहाँ पर एन की वैल्यू 1 है और यहाँ पर एन की वैल्यू 2 है, तो दिस इज 1s एंड दिस इज 2s। क्या डिफरेंस समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन्स, 3 ऑर्बिटल्स हैं। 3 ऑर्बिटल्स और एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, 2। तो इट मींस इसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 6। तो अगर हम पूरे पूरे सेकंड वाले सबशेल की बात करें तो 6 इलेक्ट्रॉन्स इसमें और 2 इसमें, टोटल कितने हो गए, 8। क्लियर। अगर अब हम बात करते हैं थर्ड शेल की। थर्ड शेल में एल की वैल्यू कितनी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है और 2 भी हो सकती है। हमने बोला था एल इज इक्वल टू 0 टू n-1, तो 0 1 2 3 वैल्यूज हो सकती है। 0 में m की वैल्यू कितनी होगी, सिर्फ 0। इट मींस ओनली 1 ऑर्बिटल इज प्रेजेंट, और 1 ऑर्बिटल किस में होता है, s में। अदरवाइज ऑल्सो l की वैल्यू 0 है तो s। लेकिन क्योंकि हम कौन से शेल की बात कर रहे हैं, थर्ड, n की वैल्यू 3 है तो वी विल राइट 3s। देन l इज इक्वल टू 1, इट मींस p सब शेल की बात हो रही है, और 1 में m की वैल्यूज कितनी आ जाएंगी, 3। 0 -1 0 एंड +1, इट मींस कितने सबशेल हैं इसके, कितने ऑर्बिटल्स हैं इसके अंदर, 3। ठीक है। नाउ बिकॉज प्रिंसिपल शेल हमारा 3 था तो 3p आया, यहाँ पर प्रिंसिपल शेल 2 था तो 2p आया था, है ना। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स दोनों में सेम ही रहेंगे, 3 ही रहेंगे, बिकॉज p ऑर्बिटल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हमेशा 3 ही होते हैं। s ऑर्बिटल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, s सबशेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हमेशा 1 ही होते हैं, और d ऑर्बिटल में, d सबशेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल हमेशा 5 ही होते हैं। नाउ 3 इज इक्वल टू 2, तो 5 वैल्यूज आ गई, m की 5 वैल्यूज आ गई, इट मींस 5 ऑर्बिटल्स हो सकते हैं। एंड बिकॉज l की वैल्यू 2 है, l की वैल्यू 2 मींस वी आर टॉकिंग अबाउट d सबशेल, और n की वैल्यू 3 है, इट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट थर्ड शेल। क्लियर। तो हम जिस भी इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं वो डिपेंड करता है अब हमें इलेक्ट्रॉन का, तो हम जिस भी इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं हमें पता चल जाएगा कि वो कहाँ पर एक्चुअली एग्जिस्ट करता है। या वो कैसे पता चलेगा, वो आगे जब हम नेक्स्ट वीडियो करेंगे उसमें आप क्वेश्चंस करेंगे तो आपको एग्जैक्ट पोजीशन भी इलेक्ट्रॉन की पता निकालना सिखाऊंगी मैं कि कैसे निकालते हैं। ठीक है। तो आपको पता चल गया। अब अगर आप पूरे थर्ड शेल की बात करो तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, 5 ऑर्बिटल्स हैं तो 5 2 10 तो इसमें हो गए, 3 ऑर्बिटल्स हैं तो 3 2 6 तो इसमें हो गए, 1 ऑर्बिटल है 1 इंटू 2 इसमें हो गए, तो 10 इंटू 6 कितने हो गए, 16 प्लस 2 कितने हो गए, 18। सो इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट इफ वी हैव
एन नंबर, अगर हमारे पास एन नंबर है यानी प्रिंसिपल शेल है, तो बाकी चीजों को हम खुद कैलकुलेट कर कर इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट लोकेशन तक पहुंच सकते हैं। क्लियर? सो दीज आर द क्वांटम नंबर्स। इसमें से क्वेश्चन आई थिंक मिस हो गया मुझसे। इसके लिए एक क्वेश्चन है आपके पास। क्वेश्चन वाली स्लाइड गायब हो गई, कोई बात नहीं, मैं पूछ लेती हूँ आपसे वो क्वेश्चन क्या है। आई एम गिविंग यू वन क्वेश्चन एंड यू हैव टू फाइंड आउट। अभी जब तक मैं यहाँ हूँ, वीडियो चल रही है, आप उसको सोचें कि उसका आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है? आई एम टेलिंग यू द क्वेश्चन। द क्वेश्चन फॉर दिस इज, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। क्वेश्चन कहाँ गया? That's the question. Yes, the question is tell how many electrons in a given atom can have the following sets of quantum numbers. How many electrons in a given atom can have the following set of quantum numbers? अगर n की वैल्यू है 2, ठीक है, n की वैल्यू 2 है, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं स्टूडेंट्स? n की वैल्यू 2, तो वैसे तो हम जनरल फॉर्मूला लगाते हैं कौन सा, 2n², तो कितना हो जाएगा, 2 2 4, 4 2 8 इलेक्ट्रॉन्स। इफ n इज इक्वल टू 2 एंड l इज इक्वल टू 1, अब n तो 2 है लेकिन l भी उसने स्पेसिफाई कर दिया कि हम l इक्वल 1 की बात कर रहे हैं, l इक्वल 1 की बात कर रहे हैं, इट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट p सबशेल, सिर्फ p सबशेल की बात कर रहे हैं आप। तो p सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं? ओनली 6, तो आंसर आ जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन्स। इफ n इज इक्वल टू 2 एंड l इज इक्वल टू 1, यानी वी आर टॉकिंग अबाउट 2p, 2p सबशेल, एंड ml इज इक्वल टू -1, m की भी वैल्यू उसने फिक्स कर दी, दैट इज -1। ठीक है? तो क्या हो जाएगा हमारे पास, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? -1 की बात कर रहे हैं, इट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली वन ऑर्बिटल, है ना? वन ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं, कोई एक ही ऑर्बिटल, और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं? 2, सो द आंसर विल बी 2 इलेक्ट्रॉन्स। थर्ड कंडीशन है इफ n इज इक्वल टू 2, यानी सेकेंड शेल, L इज इक्वल टू 1, यानी P सब शेल 2p तक पहुंच गए हम, ms इज इक्वल टू +½ यानी जो स्पिन क्वांटम नंबर है उसका वो क्या है, +½ तो एक ऑर्बिटल में दो ही इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, जिसमें से +½ तो सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन का स्पिन हो सकता है, तो द आंसर विल बी 1 इलेक्ट्रॉन। when you will do more question in the assignment, the concept will become more clear to you, and this is a very important topic of this chapter. Most of the questions आपको इसी में से आते हैं, तो आपको इसकी प्रैक्टिस जरूर करनी है स्टूडेंट्स। आई होप आप सब लोगों को समझ में आ गया। वी हैव 4 मैजिकल नंबर्स, दीज आर कॉल्ड एज 4 quantum numbers. The principal quantum number, which tells us about the shell of the electron, the azimuthal quantum number, which tells us the subshell of the electron, then magnetic quantum number, which tells us the orbital of the electron, and the spin quantum number, which tells us about the spin of the electron. And by knowing all these things, we can reach to the exact position of the electrons. Okay, so thank you students, thank you very much. Okay.